Okay children, to make To make the water fit for drinking, all harmful impurities and germs, diseases caused should be removed. Underline children, to make the water fit for drinking, all harmful impurities and germs means they are microorganisms, okay, and they cause diseases. So to make the water fit for drinking, all impurities and germs should be removed. ठीक है, उसको फिट करने के लिए, वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए फिट करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वी शुड रिमूव द इम्प्योरिटीज. Some methods to remove these impurities by purifying water are as follows. Underline children, you have to learn the classification of removal of impurities. The removal of impurities, they are classified into two groups, insoluble and soluble impurities. Insoluble impurities removed by sedimentation and decantation. Okay. Second method is by filtration. And soluble impurities removed by evaporation and by distillation. Okay, beta, now separating insoluble impurities by sedimentation and decantation. In muddy water, children, underline muddy water. Muddy water means mud is present in water. ठीक है, muddy water का मतलब होता है कि ऐसा पानी जिसमें क्या है, mud है. ठीक है, तो how we remove the mud from water? So we use the sedimentation and decantation method. In muddy water, when kept undisturbed for some time, mud settles down and the clear water comes up. See children, see the diagram, sedimentation and decantation. देखो sedimentation में क्या होता है, इन मड, जैसे सपोज आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, आपने उसमें थोड़ी सी मड ली, ठीक है, उसको स्टर किया, तो आप उसको ग्लास को क्या करोगे, थोड़े टाइम के लिए रख दोगे, ठीक है, तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, वो जितनी भी मड होगी, द मड इज सेटल्ड एट द बॉटम, जो मड है वो नीचे सेटल हो जाएगी. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन का मतलब होता है सेटल्ड एट द बेस. ठीक है, सेटल्ड एट द बेस एंड दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. तो आपने क्या किया, मड को कैसे सेपरेट किया? थ्रू सेडिमेंटेशन. ठीक है, लीव द कंटेनर फॉर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम द मड इज सेटल्ड एट द बॉटम. ठीक है, और अ क्लियर लिक्विड फ्लोट एट द सरफेस ऑफ वाटर. इसके बाद देखो सेकंड वाले में क्या कर रहा है, ये स्लोली पोर द वाटर इनटू अनदर वेसल. फिर उसने स्लोली पोर करके उस वाटर को दूसरे वेसल में निकाल दिया. ठीक है, अब वाटर निकालने के बाद क्या हुआ, एक वेसल में क्या रह गया, मड, और एक वेसल में क्या रह गया, आपका वाटर. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द डिकैंटेशन मेथड. तो डिकैंटेशन का मतलब होता है पोरिंग ऑफ वाटर इनटू अनदर वेसल. ठीक है, तो सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय डिकैंटेशन. ये जो दोनों मेथड है ये हमेशा एक साथ चलते हैं. पहले हम सेडिमेंटेशन करते हैं, सेटल द इम्प्योरिटीज. ठीक है, पहले इम्प्योरिटीज को सेटल करते हैं. उसको कैसे करके करते हैं, लीव द सॉल्यूशन फॉर सम टाइम. ठीक है, आफ्टर सम टाइम द इम्प्योरिटीज, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल एट द बॉटम. ठीक है, वो नीचे सेटल हो जाती है एंड देन आफ्टर पोरिंग द वाटर इनटू अनदर वेसल एंड दिस इज कॉल्ड द डिकैंटेशन. सो चिल्ड्रन क्लियर, sedimentation and decantation. See the diagram is given in your book. ये सब दिया है आपको इसमें. In muddy water. In muddy water, when kept undisturbed for some time, mud settles down and the clear water comes up. This can be separated slowly by pouring out the clean water, which is at the top, to another vessel by using a glass rod or spoon, as shown in the figure. The sediments will be left behind. Now read about by filtration. Okay, beta, sit down. Kritika, come here. Read about the filtration method. So children, in filtration method we use a filter paper. Okay, filter paper. Separation of insoluble impurities with the help of filter paper or filtering medium is known as Underline children, separation of insoluble impurities with the help of filter paper or filtering medium is known as filtration. For filtration, filter paper can be folded twice as shown in the figure. Children, turn your page, see the diagram. How we make the filter paper? They were separating.
soluble impurities. ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू मेक अ फिल्टर पेपर. सबसे पहले हम एक फिल्टर पेपर बनाएंगे. ओपन वन पार्ट. Open one part to get the cone shape and cut this cone in a glass bottle. सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक फिल्टर पे कोई पेपर लिया हमने, उसको इस तरीके से कोन की शेप बनाया. देखो इसमें आपके डायग्राम में भी दिया. ठीक है, इस पे आप पेपर को फोल्ड करते रहे और इसको इस तरीके से कोन शेप बनाया और उसके बाद इसको यहाँ पे ग्लास फनल. देखो फिल्ट्रेशन का डायग्राम देखो, द ग्लास फनल इज गिवन. ठीक है, देन वी केप द फिल्टर पेपर इन अ ग्लास फनल. To make the filter paper stay in the glass funnel, sprinkle some water over it by evaporation. ठीक है, तो फिल्ट्रेशन इसके बाद क्या क्या हमने चिल्ड्रन, देखो फिल्ट्रेशन मेथड में क्या हुआ चिल्ड्रन, हमने पहले एक फिल्टर पेपर लिया, उसको ये ग्लास फनल में फिट किया. ठीक है, उसके बाद उससे पास किया मडी वाटर. तो जब हम मडी वाटर को पास करेंगे, द मड इज एट द फिल्टर पेपर एंड द क्लियर वाटर इज पास थ्रू देम. जो वाटर होगा वो तो पास होके यहाँ पे वेसल में इकट्ठा हो गया, कलेक्ट हो गया, और जो मड थी वो कहाँ पे कलेक्ट होगी, फिल्टर में. जैसे आप देखते हो चाय जब हम बनाते हैं तो टी में क्या होता है, टी लीव्स भी होती है, तो हम एक स्टेनर यूज़ करते हैं. तो स्टेनर इज एक्ट एज अ फिल्टर. स्टेनर किसका काम करता है, फिल्टर का. तो जब हम उसमें से चाय को धीरे धीरे डालते हैं तो स्टेनर में क्या लेफ्ट हो जाता है, टी लीव्स हो जाती है, और जो टी है वो कहाँ पे आ जाती है, कम पे आ जाती है. ठीक है, so this is called the filtration method by evaporation. The three steps involved in this method are. हाँ, देखो चिल्ड्रन, evaporation method is used to remove the soluble impurities. ठीक है, evaporation का मतलब क्या होता है, change of water to water vapor. ओके, अब जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट कैसी इम्प्योरिटी है वाटर में, soluble impurity. तो how we remove the soluble impurities from water by evaporation. हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे अब हमारे पास कोई वाटर है, हमने उसमें सॉल्ट डाला. ठीक है, अब हम सॉल्ट और वाटर को कैसे सेपरेट करेंगे, बाय इवेपोरेशन मेथड. सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन को हीट